हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। तो इस टॉपिक के अनुसार हम डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन जेड ट्रांसफॉर्म से कैसे निकालते हैं, ये एप्लीकेशन भी कहलाता है जेड ट्रांसफॉर्म का। एज वी नो द लैपलेस ट्रांसफॉर्म मेथड इज क्वाइट इफेक्टिव इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। द जेड ट्रांसफॉर्म इज यूजफुल टूल इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म यूजफुल होता है डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टू सॉल्व ए डिफरेंस इक्वेशन वी हैव टू टेक द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो डिफरेंस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं दोनों साइड में इक्वेशन के यूजिंग द प्रॉपर्टी जेड एफ एन प्लस के इक्वल्स टू जेड पावर ऑफ के एफ जेड माइनस एफ नॉट माइनस एफ वन अपॉन जेड up to dash 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 minus f k minus 1 upon z power of k minus 1 where k greater than 0. Using the initial condition, we get a algebraic equation of the form f z equals to phi z. By taking the inverse z transform, we get the required solution fn of the given difference equation. इस तरह से उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल लें इसका। सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन yn plus 1 plus yn equals to 1 where y not equals to 0 by z transform method. गिवन इक्वेशन क्या है yn plus 1 plus yn equals to 1. Let yz be the z transform of yn. Then taking the z transform of both sides of 1 we get z transform of yn plus 1 plus z transform of yn equals to z1. और z multiply yz minus y naught plus yz equals to z upon z minus 1. z transform 1 क्या होता है z upon z minus 1. Using the given condition it reduces to z plus 1 by z equals to z upon z minus 1 or yz equals to z upon z minus 1 into z plus 1. Then find the inverse z transform of this yz equals to 1 upon 2 z upon z minus 1 minus z upon z plus by the partial fraction method. On taking the inverse z transform we obtain yn equals to 1 upon 2 1 z upon z में किसका z transform होता है 1 का और z upon z plus 1 minus 1 की पावर n का, तो -1 की पावर n। इस तरह से ये सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका डिफरेंस इक्वेशन का। एक और एग्जांपल है। सॉल्व yn plus 2 plus yn equals to 1 y naught equals to y1 equals to 0 using z transform. Consider yn plus 2 plus yn equals to 1 equation number 1. Taking z transform on both sides we get z transform of yn plus 2 plus z transform of yn equals to z1. Then we get z square yz minus y naught minus y1 upon z plus yz equals to z upon z minus 1 और z square plus 1 into yz equals to z upon z minus 1 और yz equals to z upon z minus 1 into z square plus 1 और yz upon z equals to 1 upon z minus 1 into z square plus 1 और a upon z minus 1 plus bz plus c upon z square plus 1. It is the partial fraction of this factors. और 1 upon 2 1 upon z minus 1 माइनस z upon z square plus 1 माइनस 1 upon z square plus 1 ABC वैल्यू निकालने का कंपेयर करने के बाद z के पावर्स का में ये वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। इस तरह से ये yz की वैल्यू आ जाएगी। तो yz इक्वल्स टू z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz अपॉन z yz में कन्वर्ट हो जाएगा 1 upon 2 z upon z minus 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z upon z स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से यूजिंग द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म वी गेट yn इक्वल्स टू 1 upon 2 ये 1 का जेड ट्रांसफॉर्म है 1 माइनस ये cos n पाई बाई 2 का जेड ट्रांसफॉर्म है माइनस साइन n पाई बाई 2 का जेड ट्रांसफॉर्म है। इस तरह से सॉल्यूशन निकल गया इसका। नेक्स्ट है इस तरह से सॉल्व yn प्लस 2 प्लस 6 yn प्लस 1 प्लस 9 yn इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। राइट साइड में से 2 रेज़ टू पावर n है तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं y नॉट इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू 0 यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। Consider yn plus 2 plus 6 yn plus 1 plus 9 yn equals to 2 raised to power n equation number 1. Taking the z transform of both sides we get z transform of yn plus 2 plus 6 z power of yn plus 6 z transform of yn plus 1 plus 9 by z transform of yn equals to z transform of 2 power of n. Then we get z square yz minus y naught minus y1 upon z plus 6z yz minus y naught plus 9 yz equals to z upon z minus 2. Then z square plus 6z plus 9 into yz equals to z upon z minus 2. Then yz क्या आ जाएगा इससे z upon z minus 2 into z plus 3 का होल स्क्वायर, जिससे yz upon z की वैल्यू हो जाएगी 1 upon z minus 2 into z plus 3 का होल स्क्वायर
यदि पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो बाई जेड अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/25 इंटू 1/z माइनस 2 माइनस 1/25 1/z प्लस 3 माइनस 1/5 1/z प्लस 3 का होल स्क्वायर। और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इनवर्स जेड ट्रांसफर बाई जेड की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमें प्राप्त होगा वाई एन इक्वल टू 1/25 2 रेज टू पावर एन, जेड माइनस 2 रेज टू पावर एन हो जाएगा, माइनस 3 रेज टू पावर एन, जेड माइनस 3 लिख सकते हैं तो हो जाएगा इसे -3 रेज टू पावर एन। इस तरह से प्लस 5/3 इंटू एन इंटू -3 होल रेज टू पावर एन। इस तरह से हमें ये जेड ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी दो इक्वेशन सपोज दे रखी हैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। xn प्लस 1 माइनस वाई एन इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है वाई एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल्स टू 1 विद x0 इक्वल्स टू 0 और y0 इक्वल्स टू 0। द गिवन इक्वेशंस आर xn प्लस 1 माइनस वाई एन इक्वल्स टू 1, x नॉट इक्वल्स टू 0 और yn प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल्स टू 1, y नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसमें इक्वेशंस हो गए। और टेकिंग द जेड ट्रांसफॉर्म वी गेट, तो इसका हम जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या आ जाएगा, जेड इंटू एक्स जेड माइनस एक्स नॉट माइनस वाई जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस 1। इधर दूसरी का लेंगे तो जेड इंटू वाई जेड माइनस वाई नॉट माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस 1। यूजिंग द इनिशियल कंडीशन वी हैव एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस 1 और जेड वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑन टेकिंग द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बोथ साइड वी हैव एक्स एन इक्वल्स टू एन और वाई एन इक्वल्स टू एन विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन। इस तरह से हम दो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस तरह से एक और इक्वेशन है, सॉल्व एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू 7xn प्लस 10y n और वाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 4y n विद एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 वाई नॉट इक्वल्स टू 2। गिवन xn प्लस 1 इक्वल्स टू 7xn प्लस 10y n इक्वेशन नंबर 1 और वाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू xn प्लस 4y n इक्वेशन नंबर 2। टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट जेड एक्स जेड माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 7xz प्लस 10y और जेड माइनस 7 इंटू एक्स जेड माइनस 10y इक्वल्स टू 3z। दोनों को सॉल्व करने पर हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, जेड इंटू वाई जेड माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस 4y या माइनस एक्स जेड प्लस जेड माइनस 4 इंटू वाई जेड इक्वल्स टू 2z इक्वेशन नंबर 4। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड से हमें मिलेगा वाई जेड इक्वल्स टू आ गया 2z स्क्वायर माइनस 11z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 11z प्लस 8 या 2z स्क्वायर माइनस 11z अपॉन जेड माइनस 9 इंटू जेड माइनस 2। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसके a अपॉन जेड माइनस 9 प्लस b अपॉन जेड माइनस 2, जैसे a की वैल्यू बना b की वैल्यू भी बना जाएगी तो वाई जेड अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन जेड माइनस 9 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 और वाई जेड को कह सकते हैं जेड अपॉन जेड माइनस 9 प्लस जेड अपॉन जेड माइनस 2 और इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेते तो क्या आ जाएगा, वाई एन इक्वल्स टू 9 पावर ऑफ n प्लस 2 पावर ऑफ n। इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा। इस तरह से सेकंड इक्वेशन लेते हैं, एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन प्लस 1 माइनस 4 वाई एन इक्वल्स टू 9 पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस 2 पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 9 पावर ऑफ n प्लस 2 पावर ऑफ n इक्वल्स टू 9 इंटू 9 पावर ऑफ n प्लस 2 इंटू 2 पावर ऑफ n माइनस 4 इंटू 9 पावर ऑफ n माइनस 4 इंटू 2 पावर ऑफ n। Therefore xn equals to 5 into 9 power of n minus 2 into 2 power of n. Hence the solution is xn equals to 5 into 9 power of n minus 2 into 2 power of n. yn equals to 9 power of n plus 2 power of n. इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालें, इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन जेड ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है। इसमें एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सिंपल से स्टेप है, सबसे पहले जेड ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, फिर इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है जिससे कि सॉल्यूशन निकल जाएगा, सीक्वेंस निकल जाएगी हमें और हमें सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग द जेड ट्रांसफॉर्म। इस तरह से ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू।